Hello everyone. So let us start with another topic of investment management, that is efficient market hypothesis. Till now we have discussed about the prediction of stock prices based on fundamental analysis and technical analysis. So further we are discussing the last part in this, that is efficient market hypothesis. See, as I told you, there are three types, or you can say there are three approaches for the valuation of security. That is fundamental analysis, where we have a long-term view; technical analysis, we have short-term view; and third in this comes is efficient market hypothesis. Very important topic. So you can check out the playlist, and from there you can revise fundamental and technical analysis both. So the first point which I would like to recap, like fundamental analysis and technical analysis both helps us in calculating the intrinsic. Intrinsic means the true value of the share based on financial information. If it is long term, then fundamental. If it is short term view, then it is technical. So basically they talk mostly about past prices, volume of data. ठीक है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस जनरली शो करता है. ठीक है, एंड इन फंडामेंटल एनालिसिस वी मेक यूज ऑफ इकोनॉमी, वी मेक यूज ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी, जिसमें हमने ईआईसी अप्रोच डिस्कस किया था. Now, what is efficient market hypothesis, or what is efficient stock market? Efficient stock market is one where you can see that price of any given stock or share represents the true value of the share. It means अगर आप किसी भी सिक्योरिटी को स्टडी करते हैं, तो जो उसका अभी मार्केट प्राइस होगा वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होगा, उसके इक्वल होगा. इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स फेयर प्राइस. तो यही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मीनिंग इस वाली स्लाइड में. तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में दे आर सेइंग द फर्स्ट टू अप्रोचेस विद फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस helps in calculating the intrinsic value of the stock based on financial information. They also help in predicting the stock price movement based on past price and volume of data. This is basically for technical part. ठीक है. Whereas an efficient stock market is one in which the price of any given stock effectively represents the true intrinsic value of the stock. तो ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स जो उसकी फेयर प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है एफिशिएंट स्टॉक मार्केट में, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो वही इसका यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है. इसके अंदर एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं रैंडम वॉक थ्योरी. देखिए रैंडम वॉक थ्योरी बड़ी बेसिक थ्योरी है. इसके अंदर व्हाट दे एक्सप्लेन, दे ट्राई टू से कि नो वन कैन प्रिडिक्ट द स्टॉक प्राइसेस. ठीक है, स्टॉक प्राइसेस आर अगर नॉट प्रिडिक्टेबल. अगर आप उनको प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो इट मींस मार्केट के अंदर कुछ इनएफिशिएंसीज हैं. इनएफिशिएंसी मतलब जो मार्केट है वो इरेशनली बिहेव कर रही है. और ये रैंडम वॉक थ्योरी जनरली ये ओपिनियन शो करती है कि जो स्टॉक मार्केट होते हैं उसके अंदर एक रैंडम पैटर्न्स चलते हैं, रैंडम वॉक चलती है, एंड नो वन कैन प्रिडिक्ट. लेकिन अगर कोई प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि नेक्स्ट आगे क्या होगा, इट मींस it represents a weak form of markets. Weak form of markets means because the information is not available to all. If few people can gather that confidential information, so it would represent a weak form of markets. तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, this theory is based on the assumption that the stock prices follow a random pattern or a walk. It implies that one cannot predict the successive price changes. If stock prices are predictable, that shows market inefficiency and investors irrationality. तो बेसिकली अभी आपको बताया इट रिप्रेजेंट्स अ वीक फॉर्म ऑफ मार्केट्स. तो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट मींस वेयर यू कैन प्रिडिक्ट द मूवमेंट्स. सो दैट इज अ वीक फॉर्म ऑफ मार्केट्स बिकॉज इट मींस द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू फ्यू पीपल एंड दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट. तो इसका एक ये फॉर्मूला इन्होंने एक इक्वेशन बनाई हुई है. द रैंडम वॉक मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. इज PT is price in period T and P is equal to PT minus 1. It means price in the previous year. ठीक है, प्लस ET represents a random term which is unpredictable. Something which is unpredictable is represented by ET and PT जब आपको प्राइस डिटरमिन करना है कौन से पीरियड में और उसके प्रीवियस ईयर में कौन सा प्राइस था, दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय PT माइनस 1. सो ये बेसिकली एक थ्योरी कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर बेसिकली रैंडम वॉक थ्योरी speaks about
that no one can predict the stock market because they walk on random patterns. And if someone is predicting what is going to be next, भाई ये कंपनी डिविडेंड देने वाली है या ये कंपनी अभी बोनस शेयर इशू करेगी, इट मीन द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू फ्यू पीपल, जो रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में काफी वीकनेस है, because the information is leaking out, confidential informations are leaking out, and few people are taking advantage of it. So that is random walk theory. इसी के अंदर आप देखिए, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है। अगर कोई न्यू इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है तो बेसिकली वो आपके स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट कर जाएगी और वो मार्केट प्राइस में एडजस्ट हो जाएगी। इट मीन्स क्विकली, एज सून एज द न्यू इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, it will be quickly adjusted in market price of the securities. It means hardly there would be any chance with the people to take advantage of it. Few people can take if they are, we can say, very alert in the market. Otherwise change in price, security price में change तभी आएगा जब कुछ नया happen होगा। अब मान लीजिए कल को कोई कंपनी आके बोलती है कि हम डिविडेंड प्लान करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे, तो दिस इंफॉर्मेशन इज न्यू टू एवरीवन। सो जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता या जैसे ही वो न्यूज आउट हुई, कुछ पीपल ने उनका एडवांटेज ले लिया, बिकॉज जिसको पहले पता लगा, इट इज जस्ट लाइक द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द पीपल, हाउ क्विकली दे कैन रिस्पॉन्ड। तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के अंदर। एंड दोज हु कुड नॉट रिस्पॉन्ड, तो दे विल नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ इट। बट इन दिस एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस तभी होगा when the information is available to all, and it depends how quickly the people or the person or the investor can take action. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, it implies that prices of the securities quickly adjust to all available and new information and reflect in market price of the securities. Therefore the idea of market efficiency here is concerned with informational efficiency, भाई information कितनी efficient है। A change in security prices will only occur if something new happens. In an efficient market, there is no point in believing that current market price is too low or too high. जब एक नई इंफॉर्मेशन आ गई है तो और मार्केट एफिशिएंट है, तो इट इज नॉट अ पॉइंट कि मार्केट प्राइस इज टू हाई और टू लो। इट मींस एफिशिएंट मार्केट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर, फेयर प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, देयर आर 3 फॉर्म्स, अभी हम डिस्कस करेंगे। इट इज बीन गिवन बाय फार्मा इन 1970। वीक फॉर्म हाइपोथेसिस, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, और आप इसमें भी बोल सकते हो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, इज वन एंड द सेम थिंग। द अबव क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो अभी हम जब ये तीनों की बाइफर्केशन करेंगे, वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, हम करेंगे ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इसके बेसिस पे करेंगे। So it is just like a diagram, levels and forms of market efficiency: weak, semi-strong and strong. So let us discuss it further. So see, in weak form of market efficiency, what happens is, जो सिक्योरिटी का करंट प्राइस होता है, that reflects all information or you can say all past data, historical information reflect करता है। और बेसिकली जब वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी होती है, ये हमारे लिए कुछ हेल्पफुल भी नहीं होती कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है, अगेन ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, रैंडम वॉक, जो भी हमने डिस्कस किया कि रैंडम पैटर्न्स पे मूव करता है। और ये टेक्निकल एनालिसिस, जो हमारा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये टेक्निकल एनालिसिस को जरा से भी ओबे नहीं करता, इट डिसरिगार्ड्स टेक्निकल एनालिसिस। इट मींस इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन टेक्निकल एनालिसिस, यस, बट फंडामेंटल एनालिसिस को ये कंसिडर करता है और ये एज्यूम करता है वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी कि जिन लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस स्टडी किया है और जितनी उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सो दे कैन अर्न सुपीरियर प्रॉफिट्स। तो देखिए अभी आपको मैं स्लाइड से समझाता हूं, वहां पर आपको मिलेगा ये वाला पॉइंट। अंडर वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, द सिक्योरिटीज करंट प्राइस रिफ्लेक्ट्स द ऑल पास्ट डेटा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. This version implies that historical prices are not useful in predicting tomorrow's price. It means tomorrow's price cannot be predicted with the help of this historical prices. Successive price changes in this form of the market follows a random walk and are non-stationary. It disregards technical analysis, जो भी मैंने आपको समझाया। आगे देखिए, मैंने आपको बताया इसकी इंप्लीकेशन क्या है, सिर्फ वो ही इन्वेस्टर रिटर्न हायर अर्न कर पाएंगे जिन्होंने फंडामेंटल स्टडी किया और अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे क्विकली रिएक्ट किया।
तो देखिए, इन्वेस्टर्स कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स बाय यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस एंड publicly available information through reports, financial statements, etc. Financial statements would be balance sheet, P&L, income statement. Stock prices follow a random walk, and technical analysis is of no use in this form of market. तो कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द मार्केट एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन। तो वीक फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि वहां पर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होती फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, और ये कौन, ये रैंडम वॉक फॉलो करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को ओबे नहीं करते, और वही इन्वेस्टर हायर प्रॉफिट्स अर्न करेगा who have studied fundamental analysis and reacted to public available information. Then comes is a semi-strong form of market efficiency. अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि इस फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी में कोई भी इन्वेस्टर सुपीरियर प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी या अवेलेबल होगी, क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा था कि हम इन तीनों मार्केट फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी का क्या करेंगे, किसके बेसिस पर कैटेगराइज करेंगे, अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जैसे वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी के अंदर क्या होता है कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस वाले लोग ज्यादा करते हैं और जिनके पास पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बट इन सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी व्हाट हैपेंस इज, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी वो सबके पास इक्वल स्पीड से पहुंच जाएगी। इट मींस ऑल द पार्टिसिपेंट्स और इन्वेस्टर्स कैन हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन विथ इक्वल स्पीड। लेकिन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी में हो सकता है कि कुछ के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या कुछ के पास पास्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, उनके बेसिस पर उन्होंने स्टेप लिया या इन्वेस्टमेंट की। लेकिन सेमी स्ट्रॉन्ग के अंदर आप ये कहते हो कि सेमी स्ट्रॉन्ग के अंदर कि जो भी नई इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी इट विल बी अवेलेबल टू ऑल द इन्वेस्टर्स एट द सेम टाइम विद इक्वल स्पीड। So it means everyone will react quickly, and when they react quickly तो कोई भी superior profits earn नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। तो देखिए, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी वेयर द सिक्योरिटी प्राइस रिफ्लेक्ट्स all public available information, that is all financial and operating information. Since the stock prices are already adjusted for publicly available information, तो जो इंफॉर्मेशन मार्केट में आउट हुई वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गई है। No investor can earn superior profits and outperform the market using this information. Whenever a new information is generated, all the participants assess the information with equal speed and efficiency. ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट हाइपोथेसिस कहता है कि भाई इसमें ना फंडामेंटल ना टेक्निकल, दोनों आर ऑफ नो यूज। जबकि वीक फॉर्म क्या कहता था, वी कैन फॉलो फंडामेंटल एनालिसिस बट वी विल नॉट फॉलो टेक्निकल। But semi-strong कहता है both fundamental and technical analysis becomes useless in case of semi-strong form of market efficiency. Only those investors can earn superior profits who have access to private or confidential information. तो it means ना ही फंडामेंटल फॉलो करना ना ही टेक्निकल। तो इसमें इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ एक ही चॉइस है सुपीरियर प्रॉफिट अर्न करने का, कि या उनके पास कोई कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो या कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। लेकिन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी में हम क्या कहते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करेंगे और जितनी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस पर रिएक्ट करेंगे। वहां पर कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन का कोई पॉइंट नहीं था। बट सेमी स्ट्रॉन्ग में वो ही सुपीरियर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट इंफॉर्मेशन का एक्सेसिबल है या रीच है। लास्ट इन दिस कम्स इन स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। स्ट्रॉन्ग फॉर्म अगेन इसके अंदर क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो भी है वो सारी स्टॉक प्राइस में एडजस्ट हो चुकी है। नो इन्वेस्टर कैन अर्न सुपीरियर प्रॉफिट्स इन एनी केसेस। जैसे वीक फॉर्म में वो कर सकता है फंडामेंटल को स्टडी करके, सेमी स्ट्रॉन्ग में कॉन्फिडेंशियल से कर सकता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से। हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इट इज नॉट अवेलेबल। तो देखिए, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी वेयर द सिक्योरिटी प्राइस रिफ्लेक्ट्स all past price and information both public as well as private. No investor can consistently earn superior profits as stock prices is already adjusted for information available. Security price can only change by inflow of new information. कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी तो। लेकिन इसमें क्या इसका इम्प्लीकेशन है ये देखिए। In an efficient market, an investor cannot consistently earn superior returns or outperform the market.
क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट है तो जो भी नई इंफॉर्मेशन और अब पुरानी इंफॉर्मेशन पब्लिक और प्राइवेट जो भी है वो क्विकली मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टर सुपीरियर प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकता और मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ पर मार्केट इन्वेस्टर क्या करता है, पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन एफिशिएंट मार्केट वेयर एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन द मार्केट इंडेक्स एंड कैन अर्न मार्केट रिटर्न्स एट मार्केट रिस्क। जैसे आप कई बार कहते हो ना कि इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा है मैं पूरा स्टॉक मार्केट इंडेक्स खरीद लेता हूँ, लेट से BSE 30, तो हम कहते हैं इन 30 शेयर में मैंने पूरा इंडेक्स खरीद लिया, तो इसका मतलब मेरा जो पैसा है वो पूरे इन 30 कंपनीज में लग जाएगा। सो दैट इज व्हाट मार्केट इंडेक्स। However, the investor can adjust their passive portfolio with risk-free asset, जैसे आप बैंक FD कहते हो, T-bills कहते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो to suit their risk return preferences। तो कहने का मतलब ये है एफिशिएंट मार्केट कहाँ होगी, जहां पर वी हैव स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। तो ये उसी का ही पॉइंट है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक दैट विच इज रिलेटेड विद वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग एंड मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। So I hope the concept is clear to you. This is very important. In the next video, I'll be discussing with you हम इन मार्केट एफिशिएंसी जो हमने पढ़ी है वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, इनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, आपको वो प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो आप इसको एक बार नेक्स्ट वीडियो पर तभी सोच कीजिए जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। So I hope you have liked the video. So please like, subscribe, and share our channel. And please hit the bell button in the YouTube channel so that you can get the new updates. Thank you so much, and please share with your friends.